sometimes mention about their things, but men normally don't do these things. So let me ask you something, and you can answer here live, or if you just want to inbox, that's fine. Have you ever come from, like, have you ever come your home from work physically fine but mentally exhausted? So if you want to message, that's fine. We can talk about it. So, what workplace mental health really means? बेसिकली व्हाट इट इज़, ये जो है मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस के ऊपर कहीं पे भी जहाँ पे आप काम करते हैं, एक्चुअली वो है क्या? When we talk about mental health at work, we're not just talking about extreme cases. It's like we're talking about pressure, work pressure, fear of making decisions, or if you do mistakes at work, it's a fear sometime, and feeling guilty for, you know, if you're doing any rest or anything that you don't want to do, you think that it's a wrong thing you did. So feeling like you're never doing enough, it's another kind of stress, that you think that you don't do the proper way you want to do. So many people are highly functioning at work while quietly struggling inside. बहुत से लोग जो हैं वो अपना 100% देने के बावजूद जो है उनको ऐसा फील होता है कि they haven't done a lot, they haven't done the way they want to do. तो वो एक अलग स्ट्रेस जो है वो आपको रहती है काम से रिलेटेड. सो हाई फंक्शनिंग डज नॉट मीन मेंटली हेल्थी. इफ़ आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्थी एक्टिविटी कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. सो कॉमन मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स एट वर्क is like struggling. Often you show up as chronic stress, anxiety around performance, burnout, low mood swings, imposter syndromes. It's like I'm not good enough, or I'm not doing enough, and I don't deserve this role. Everyone will find out I'm not capable of something, the certain things you're doing. uh, and over a time, these thoughts chip away your confidence and your self-worth. एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. जब आप ऐसी चीज़ें सोचते हैं या ऐसे सिनेरियो से गुजरते हैं, उसके बाद आपका जब इस किस्म की थॉट्स आपके माइंड में आती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है. तो जब आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हाय थैंक यू, देन आप स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है इस वजह से बढ़ जाता है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, यू लूजिंग योर कॉन्फिडेंस. Why work can damage mental health? Why it's happening? Um, in counseling, we don't just look at the person, we look at the environment. So when we look at the environment, we look around. Like, many mental health struggles are not a personal weaknesses, is the natural response of the unhealthy system or unhealthy environment where we are working, or जो environment हमारे around होता है, जिन लोगों के बीच में हम काम कर रहे होते हैं, sometime वो प्रेशर या बिहेवियर या नेगेटिविटी जो है वो आपको वीक कर देती है या आपको डिस्टर्ब कर देती है अपने काम के ऊपर. आपका फोकस जो है वो लेस हो चुका होता है, या आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हैं उस जॉब के लिए जो आप कर रहे हैं. तो जो है इसमें कॉमन वर्क प्लेस फैक्टर्स जो हैं इसमें, जैसे आप लॉन्ग आवर्स करते हैं, या मैनेजमेंट जो है वो पुअर मैनेजमेंट है, लैक ऑफ अप्रिसिएशन है. इफ़ यू आर डूइंग too much good things and too much effort, and you are not getting the appreciation you needed, or any no work life boundaries जो हैं वो आपकी नहीं हैं, और अनसेफ कल्चर है या टॉक्सिक है, वो चीज़ें अनहेल्दी हैं, एंड yet people blame themselves instead of the system. तो बहुत से लोग जो होते हैं ऐसे प्रेशर के अंदर, आप ब्लेम करते हैं अपने आप को rather than the system where you're working. और काफ़ी लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो खुद तो ठीक हैं, बट जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं वो सिस्टम ठीक नहीं है, या वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है. हाय. So you just need to stop doing this thing, first of all, that to stop blaming yourself if something is not having, uh, not doing good enough. You're thinking, yeah, you're not doing good enough, but it's not like that. This might be the scenario, the environment where you're working. So the signs you have that maybe you are struggling, you need to be self-aware.
यू नीड टू गेट दैट सेल्फ अवेयरनेस, आपको होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा जो है वो आउटपुट इनपुट कितना है काम को लेके। तो स्लो डाउन हूँ, you need to slow down, reflect for a moment. Sign work is affecting your mental health is includes like emotionally, feeling numb, uh, tearfulness, sadness, और irritate हो जाएं आप, मेंटली ओवर थिंकिंग करने लग जाएं, या सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाएं, अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दें, or the poor focus on your work. The poor focus is like if you don't want to do the way you're doing and you're not interested in that work, the work you're doing at that time where you're working. तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं। ओवर थिंकिंग स्पेशली, ओवर वर्किंग समटाइम आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपका एटीट्यूड आपके घर आने के बाद, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन किया कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन कि क्या आप घर आने के बाद भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं अपने काम को लेके, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको हेल्प चाहिए, आपको उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए अपने काम को लेके कि आप कहाँ और कैसे काम करें और किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, अपनी मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करें अकॉर्डिंग टू योर वेल बीइंग। तो फिर बिहेवियर की बात आ जाती है। मेंटली अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म में आ रहे हैं, या आपका पुअर फोकस है ऑन योर वर्क, तो उसके बाद बिहेवियर जो है आपका वो ओवरवर्किंग हो रहा है, आप अवॉइडिंग यू आर अवॉइडिंग पीपल, कॉलिंग सिक मोस्ट ऑफ टाइम, यू डोंट वांट टू गो टू योर वर्क। तो जो ये चीज़ें हैं, इसके बाद आप अपने वर्क से ज़रा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप फिज़िकली भी डिस्टर्ब रहेंगे बिकॉज यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड। तो आपको हेडेक्स होना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्लीप प्रॉब्लम आ जाएगी, आप फिज़िकली भी टायर्ड फील करेंगे बिकॉज मेंटली इफ़ यू आर नॉट वेल यू आर टायर्ड फिजिकली। और आपको वो सिम्टम्स जो हैं, आपके बॉडी आपको सिग्नल दे रही होगी कि आप ठीक नहीं हैं, आपको रेस्ट की ज़रूरत है या आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है टुवर्ड्स योर वर्क, यू नीड टू गो समवेयर एल्स, यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क। ये चीज़ें आपको साइंस आपकी बॉडी जो है वो दे रही होती है, बट वी डोंट एक्नॉलेज दोज थिंग्स दैट द वे वी हैव टू। तो उसके बाद अगर आप if I always suggest that CBT inspired coping tools जो हैं वो आपको देखने चाहिए कि उसमें आपको किस तरीके से जो है आप हेल्प ले सकते हैं अकॉर्डिंग योर वर्क स्ट्रेस। तो आपको जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है, CBT जो होती है, उसकी हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो थॉट्स इफ़ेक्ट जो करती हैं आपकी फीलिंग्स को, आपको उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपकी जो ये फीलिंग्स हैं ये आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो आपको हेल्प चाहिए। At work, automatic thoughts often sounds like I can't say no, or if I said no, I'm not. I'm being lazy if I'm saying this, or I'm doing too much rest. These things like coming up in your mind. If I make a mistake, I'll fail, or I am not capable of the responsibility I am taking. These things will hurt your mind, that you're think if you're going to think like this way about yourself, you need help, you need to think about it, that way you need to go for help and what you do for your help, for your mental health. So you need to gently stop and reframe about that, and make a decisions for yourself. तो आपको इसके लिए टेक्निक्स जो हैं वो यही होती हैं कि आपको सबसे पहले तो ये करने की ज़रूरत है कि आपको कहना है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग आई मस्ट कोप नो मैटर व्हाट, नो, यू हैव टू से आई एम अलाउड to have limits. Instead of rest means weakness, is try to say rest help me function better. So if I need a rest, if I do rest, I'll function more better. I need rest, so I'm doing this rest because मुझे आराम की ज़रूरत है। उस आराम के बाद जो है मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीज़ें जो हैं ये आपको रीफ्रेम कर रही हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ को रीफ्रेम कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम गेम करने की बजाय आप अपने आप को सेट कर रहे हैं कि आप अगर ये कहते हैं कि मैं कोप अप नहीं कर रहा या कोप अप नहीं कर सकती, तो आप इसकी बजाय ये कहें कि मैं अलाउ हूँ, मुझे इजाज़त है कि मैं अपने लिमिट्स रखूँ। और फिर
आप ये कहने की बजाय कि रेस्ट का मतलब है कि मैं कमज़ोर हूँ या मैंने ब्रेक ले ली है तो मेरे अंदर पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो हैं वो इसकी बजाय आपको ये कहना है कि जब मैं रेस्ट करूँगा तो मैं बेहतर हेल्प कर सकता हूँ, मैं बेहतर फंक्शन कर सकता हूँ, अपने काम को ब्रेक के बाद जो है वो अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आपको ये अपने आप को अपने मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप को सिग्नल देना या ये बात करना आपकी अपने साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है वो है लाइव ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपको काम मोमेंट्स जो हैं उनके बारे में बात करनी है कि आप वो कैसे कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने आप को काम रख सकते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए। तो उसके लिए आपने रेगुलेट करना है अपने आप को, क्योंकि लेट्स पॉज एंड रेगुलेट द नर्व सिस्टम। सो just take a break and stop. And if you're very tired and you don't want to do the things, if you're not feeling to do the thing you're doing, and you are very feeling low or depressed or against the work you're doing, you're not like to do that thing, so you are just need to take a some pause, some breaks, and do some exercises to get better at the same time. So उसके लिए सबसे पहले आपको जो करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको टेक्निक है, ब्रीद इन फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स एंड देन ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगेन यू हैव टू डू दैट प्रोसेस 3-4 टाइम्स। सडनली आपको अगर अपनी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए, एंड इस तरीके से आपकी बॉडी जो है, द बॉडी टेल्स यू दैट आई एम सेफ राइट नाउ। if you're doing this exercise, the time you are feeling very low or depressed at your work and any place you're doing anything, you need to take a break, take a pause, and then do this exercise with yourself. Breathe in for 4, hold for 4 seconds, breathe out 6, and then again tell yourself that I am safe right now, what I am doing. And your body is going to give a signal to your mind, and your mind will relax the same time you're doing this exercise. Um, उसके बाद जो है वो है culture pressure, the stigma. Uh, in many cultures and workplace, mental health unfortunately is misunderstood. लोग उसको समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आपकी काम के इन्वायरमेंट पे। वो आपको लेज़ी समझते हैं, या ये समझा जाएगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू द वर्क यू आर डूइंग, और you are being lazy, anything like that. Unfortunately, is sometimes it's in the culture, as a part of the society where you are living, or where you are working. Not everywhere, but some most of places it's happening. जो मैसेजेस मैंने लोगों के देखे हैं, या जो मैसेजेस मुझे लोगों ने किए हैं, उसके बाद आई फाउंड आउट लाइक वर्क स्ट्रेस इज़ मोर देन एनीथिंग फॉर द पीपल एट द मोमेंट, जितना लोग वर्क स्ट्रेस को लेके चल रहे हैं। तो people fear being as seen as weak, lazy, or unprofessional where they are working, so they stay silent. जहाँ आप अपने वर्क पे आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप डरते हैं कि मुझे कहीं लेज़ी ना समझा जाए या मुझे कहीं अनप्रोफेशनल ना समझा जाए, तो they stay silent, and silence increase suffering. Whenever you're silent, you're not taking out the thing you're doing. So we need to stop glorifying burnout and start normalize that well-being, that it's really important thing that you have to normalize this thing, that mental health matters, and you have to think about it, that you have to take a pause, and you have to think about this thing, that you don't need to stay silent about it. If your mental health is not coping up with your work scenario or anything, you have to talk about it, you have to say it. आपको उस बात को हाईलाइट करने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मुझे इसमें ब्रेक चाहिए, या मुझे इस पे बात करने की ज़रूरत है कि मैं इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। तो आपको साइलेंट नहीं रहना, आपको उसको एक्नॉलेज करना है। जो बर्नआउट आपके स्ट्रेस के साथ आपको हो रहा है, आपको उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। डोंट जस्ट गिव अप एंड डोंट स्टे साइलेंट अबाउट इट। सो जो ये सपोर्ट है इससे रिलेटेड, हमें हमेशा जो है वो करनी चाहिए, सीबीटी सपोर्ट को हमें देखना चाहिए।
आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट कि जो लोग आपके करीब हैं, हु इज़ वेरी सपोर्टिव टू यू, द पीपल यू वांट टू टॉक अबाउट इट, तो आप उनके साथ बात करें, उनको अपनी प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट करें कि आप आपके वर्क प्लेसेस पे भी अक्सर आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती है, मोस्टली एनीवेयर जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रगलिंग, और आपको थकने नहीं देते, आप उनकी आपसे बात शेयर करते हैं। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें काउंसलिंग में जो है काम का दबाव, उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उसमें लोगों की मदद बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है हेल्प, जो आपको लेने की ज़रूरत है। सम टाइम लोग हेल्प लेने को गलत समझते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं या काम के सिनेरियो में हैं तो हमें हेल्प नहीं लेनी, या अगर हम हेल्प लेंगे तो हम वीक नज़र आएंगे। तो इसकी वजह से आप मुसलसल दबाव का कंटिन्यूस जो है वो अंडर प्रेशर रहते हैं, और जब आप कंटिन्यूस अंडर प्रेशर रहते हैं तो फिर आप गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं, और आफ्टर डूइंग मिस्टेक्स आपको लगता है कि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ द थिंग वी आर डूइंग। फिर उसके बाद आप अपने आप को एहसास दिला रहे होते हैं कि हाँ, हम कैपेबल नहीं हैं इस चीज़ के। नॉर्मली मैनी पीपल हैव सीन दैट दे डोंट टेक अ ब्रेक, दे डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक। उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोई ब्रेक ली तो उनका कोई नुकसान हो जाएगा किसी भी चीज़ का। ऑब्वियसली इन कंट्रीज़ में आपका काम इस तरीके से है कि अगर आप काम करते हैं तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो हैं मैनेजेबल हैं, which is a very good thing. लेकिन for me, I always say, after reading and studying mental health, I always say कि आपकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सेहत होनी चाहिए, क्योंकि एक सर्टन एज के बाद ये चीज़ें आपको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर चुकी होती हैं, और आपको उसके बारे में समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से हम लोग इतने एजड क्यों फ़ील कर रहे हैं, हम इतने ओवरवेल्म्ड क्यों फ़ील कर रहे हैं या टायर्ड क्यों फ़ील कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि जब आप अपने उस टाइम पे अपनी उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करते, समझते नहीं हैं, और आप ब्रेक नहीं लेते, आप बर्नआउट हो रहे हैं, आपकी बॉडी आपको उसका सिग्नल दे रही है, लेकिन आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ये एक नॉर्मल बात है, अगर आप काम पे जा रहे हैं या काम से वापस आ रहे हैं, आप थके हुए हैं, तो आप रेस्ट करेंगे तो आप ठीक हो जाएँगे। लेकिन जो प्रेशर आपके माइंड में है, क्या आपने उसको टेक आउट किया? बॉडी तो आपने रिलैक्स की, आराम करके, सो के, या ब्रेक लेके आपने बॉडी को तो रिलैक्स किया। डिड यू टेक आउट दैट बर्नआउट यू आर फीलिंग? एनी प्रेशर एट योर वर्क सिनेरियो, डिड यू टेक आउट दैट प्रेशर? आपने उसके बारे में किसी से डिस्कस किया, या आपने उसके रिलेटेड कोई हेल्प ली? अगर आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं की, तो आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, लेकिन internal pressure is something else. Nobody can see that. Till then you're acknowledging it and you're telling to others कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो अदर्स से मुराद ये नहीं है कि आपने हर एक से इसके बारे में बात करनी है या हर एक को इसको हाईलाइट करना है। आपने सिर्फ उन लोगों से इसके बारे में बात करनी है जिनके बारे में आप ट्रस्ट करते हैं कि वो आपको समझते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेंटली और फिज़िकली जो लोग आपके अराउंड हैं, जो आपके साथ रहते हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको किसी प्रेशर से निकाल सकते हैं, तो आपको ये बात उनसे करने की ज़रूरत है जो लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद जो है आपने अपनी आप एक सर्टेन एज के बाद आपके वो सारे प्रेशर जो हैं वो आपको हाइपरटेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों की तरफ आपके आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, तो आपको उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। डोंट स्टे साइलेंट, यू नीड टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम एनीवेयर इन योर वर्क प्लेस, जहाँ आपको लगे कि आपकी बात सुनी जाएगी या अंडरस्टैंड होगी, आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ठीक होना या आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई ऑलवेज से कि अगर आप अपनी एक चीज़ ठीक नहीं रखते, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रखते, तो आप काफ़ी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, जिसका आपको आइडिया उस वक़्त तो नहीं होता, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि आप जो है वो ख़राब कर चुके हैं अपनी हेल्थ को। तो जो कंटिन्यूअस स्ट्रेस है वो आपको जो है वो कर देती है बर्नआउट, आपको सैड भी कर देती है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है। तो उसका जो
इसका मतलब ये होता है कि फिर आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं अब इस काम के लायक नहीं हूँ, या मैं इस जगह से बिलोंग ही नहीं करता जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या मैं काम कर रही हूँ। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आप लूज़ कर देते हैं, और उसको लूज़ करने के बाद आपको उस जगह से, उस काम से जो है वो अट्रैक्शन नहीं रहती। लेकिन ज़ाहिर है काम है, आपको जाना है, यू कीप गोइंग देयर बिकॉज़ यू आर वर्किंग देयर। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ जो है उसका एहसास जो है वो खुद ही से करने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो सपोर्ट आपको मिल सकती है, काफ़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप, जैसे एज यूके है, आप वहाँ कॉल करते हैं और वो आपको वॉलंटियरली जो है वो आपकी बात सुनी जाती है। सीबीटी थेरेपीज़ होती हैं, अनदर माइंड जो है चैरिटी, वो लोग इस चीज़ को काफ़ी एक्नॉलेज करते हैं और वो आपको हेल्प देते हैं। उसमें भी आप मदद ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप अपने अराउंड लोगों से बात नहीं कर सकते या अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर सकते, तो फिर आप ये जो है चीज़ उनसे डिस्कस करें जो कि इससे रिलेटेड हैं, या आपको लगता है कि आप किसी से फ़ोन पे बात करके अपनी स्ट्रेस जो है काउंसलिंग ले सकते हैं स्ट्रेस रिलेटेड, और अपनी जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके, इस पे काम कर सकते हैं। तो जो हद से ज़्यादा जो है बर्डन जो है लॉन्ग आवर्स का या रॉन्ग मैनेजमेंट का, वो आपको आप उसकी वजह से अपने आप को ब्लेम मत करें, और अपने आप को उस स्ट्रेस में ना लेके आएँ कि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ दिस सिचुएशन और दिस वर्क। ये सिर्फ़ आपका मसला नहीं होगा, आप अगर किसी से बात करके देखेंगे, इसलिए मैं ऑलवेज़ सजेस्ट करती हूँ कि इन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम छोटी है, और जिससे आप बात करें शायद वो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ अराउंड यू, they are struggling somewhere, some places, but they cannot highlight that thing the same way that you are doing. You're not talking about it, you're not mentioning your problem to others, or not discussing anything related your work pressure or something. तो सेम वे कुछ बहुत से लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं वो भी उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो जब आप उनसे बात करते हैं या आप अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करते हैं, तो स्ट्रेस जो है वो टेकन आउट हो जाता है। उसको अक्सर आई एम ऑलवेज सेइंग दैट यू हैव टू डू द जर्नलिंग। अगर आप चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं तो वो आपके दिमाग से निकलती हैं और आप पेपर पे उनको राइट डाउन करते हैं, और आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता है। बेशक आप वो पेपर बाद में फाड़ दें कि कोई और उस पेपर को ना देखे, लेकिन आप अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए जर्नलिंग ज़रूर करें। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट टू एनीबॉडी एल्स। अपने इर्द-गिर्द आप बात नहीं करना चाहते तो आप इसको ज़रूर करें। एज़ आई सेड कि आप कॉल करके अपने लिए काउंसलिंग जो है वो बुक कर सकते हैं, वॉलंटियरली लोग काम करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। And my page is always there to discuss about these things. If I have so many messages I've discussed with people, their problems, and जो ethically हम लोग उस पर एडवाइस कर सकते हैं वो ज़रूर आपको करेंगे एडवाइस। तो हद से ज़्यादा काम करके लोगों से कट जाना, जो है अपने आप को ब्रेक ना देना, कोई हॉलिडे पे ना जाना, स्मॉल ब्रेक्स, इट्स नॉट लाइक कि आपको 25 डेज़ और 30 डेज़ के लिए निकल जाना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट वंस अ वीक आपको अच्छा डिनर प्लान करना चाहिए, उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, टी और कॉफ़ी ब्रेक पे जाना चाहिए जिनकी कंपनी आप एन्जॉय करते हैं, या अगर आप अपनी कंपनी एन्जॉय करते हैं तो आप अकेले बैठ के अपनी कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं। आई एम रियली गुड इन रीडिंग, सो आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो मैं भी समझती हूँ कि जो लोग बुक रीडिंग करते हैं उनका काफ़ी स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाता है आफ्टर रीडिंग बुक्स। और फिर अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं, तो अपने आप को एक दिन की ब्रेक दें। वो चीज़ें करें जो आप करना चाहते हैं, जिनके लिए आप समझते हैं आपको लॉन्ग आवर्स चाहिए या टाइम चाहिए, या अगर मेरी ब्रेक होगी तो मैं ये काम करूँगा या करूँगी। तो आप उसके लिए टाइम टेक आउट करें वन्स अ वीक, 2-3 आवर्स फॉर योरसेल्फ, इट्स नॉट अ लॉन्ग आवर टू डू। आप दूसरों के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं जिस चीज़ के लिए आपने काम किया? आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में जितनी मेहनत की, जितना वर्क किया, क्या आपने उसको एन्जॉय किया? क्या आपने अपने घर के उस एनवायरनमेंट को एन्जॉय किया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है? क्या आपने उस गाड़ी का जर्नी एन्जॉय किया है जिसके लिए आपने इतना पैसा स्पेंड किया है? तो आपको वो चीज़ें जो हैं जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की है उसको एन्जॉय करने की ज़रूरत है, उसको ब्रेक लेके एन्जॉय करें। ब बेशक 1 दिन का ब्रेक लें, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको
जो है 3-4 मंथ्स बाद एक अच्छा ब्रेक चाहिए, तो गो फॉर अ हॉलिडे, इट्स अ रियली गुड थिंग। ट्रैवलिंग जो है वो आपको बहुत अच्छा सबक देती है, घूमने का मौका मिलता है, एनवायरनमेंट देखने का मौका मिलता है, लोगों की कल्चर को देखने का मौका मिलता है, दूसरे कंट्रीज़ में जाने का अगर आपको चांस मिलता है तो आप लोगों का कल्चर देखते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। फिर वो जो गैप और ब्रेक के बाद आप वापस अपने काम पे जाते हैं तो आप उसको ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, क्योंकि आप उस सिनेरियो से निकल के एक अनदर सिनेरियो से जाके वापस आते हैं और आपको मज़ा आता है जो आप अपना काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी टेक्नीक्स हैं अपने आप को अपने काम की तरफ मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो जो सीबीटी टेक्नीक्स होती हैं, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, वो हमें फीलिंग्स के बारे में बताती है, जज़्बात और ख़यालात, थिंकिंग व्हाट वी आर थिंकिंग, वो बिहेवियर, वो हमें उस पे काम करने का तरीक़ाकार जो है उसको हमें अमल में लाते हैं। काम हमारे ज़हन में ख़यालात हमारे ज़हन में आते हैं, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें यही सोचना है कि अगर हम इन ख़यालात को, इन बातों को अपने माइंड में लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद हमें इसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। तो ये नहीं कहने की ज़रूरत कि मुझे हर हाल में इस जगह को बर्दाश्त करना है, हर हाल में इसी तरीके से काम करना है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरी भी एक लिमिट्स है, लिमिट है, मेरी भी एक हद है कि मैं इस हद तक इस सिनेरियो में काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ। तो आराम करना इज़ नॉट अ वीकनेस, ब्रेक लेना इज़ नॉट अ वीकनेस, इट्स it's a thing that you are taking out your burden, your burnout. So it's not any weakness। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैंने ब्रेक ले ली है या कोई ऐसा काम कर लिया तो ये मैंने वीक काम किया है या मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ। इसके लिए आपको बार बार अपने आप को ये मैसेज देना है कि ये मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए, मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो ये काम कर रहा हूँ। तो जो मैंने आपको एक्सरसाइज़ बताई है, जो आप अगर बाद में लाइव आए हैं, आपने पहले ये बात नहीं सुनी, तो जब भी आप अपने काम पे होते हैं, तो आपको एक अपने पाँव को ज़मीन पे रख के स्ट्रेट बैठने की ज़रूरत है। उसके बाद 4 सेकंड के लिए ब्रीथ इन करें, 4 सेकंड के लिए उसको होल्ड करें, फिर ब्रीथ आउट करें, फिर दोबारा यही एक्सरसाइज़ करें। ये जो एक्सरसाइज़ है, इससे आपके जिस्म को एक मैसेज मिलता है कि इस वक़्त यू आर इन अ सेफ प्लेस, आप महफूज़ हैं। तो ये जो सेफ प्लेस का मैसेज आप अपनी बॉडी को या अपने ब्रेन को देते हैं, तो वो आपको रिलैक्स होने का मौका मिलता है अपने काम की जगह के ऊपर। और लोगों से डरना छोड़ दें। माशरे की जो वीकनेसेस हैं, उनकी वजह से अपने आप को वीक मत करें, क्योंकि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ना ही कोई आपको हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने अपने आप बर्नआउट को किस तरीके से मैनेज करना है। जो जो साइलेंट है वो आपको आपकी सेहत को ख़राब कर रही है, आपको उसके उसके ऊपर काम करना है। तो अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको साबित करना, अपनी ज़हनी सेहत को कुर्बान करके, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई नेवर सजेस्ट दैट कि आपको अपने आप को बहुत आपको काम के ऊपर अपने आप को बहुत वो शो करना है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ या मैं बहुत फास्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा अपने काम से सीरियस हूँ। ये चीज़ें आपको हाईलाइट करने के लिए जो अपनी सेल्फ वर्थ है उसको लूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू एक्नॉलेज दैट, यू डोंट नीड टू दैट। जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो कहीं पे भी जहाँ आप काम कर रहे हैं लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो वर्क सिनेरियो में अच्छे लोग होते हैं वो आपकी मेहनत वो देख सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके काम के रिजल्ट से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस थे कि हम लोग काम के ऊपर एक्स्ट्रा काम कर देते हैं क्योंकि बॉस को खुश करना होता है, या हम एक्स्ट्रा काम कर देते हैं कि चलो हमें जो है वो पैसे ज़्यादा मिल जाएँगे, या हम ज़्यादा लॉन्ग शिफ्ट्स कर लेते हैं कि मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट। तो मेरा पर्सनली ये ख़्याल है कि जो आपको मिलना है आपके नसीब में वो तो आपको मिलेगा। उसके लिए अपने आप को जला के अगर आपने वो काम करना है, बर्न करके अपने मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, तो डोंट डू दैट। डोंट डू दीज़ थिंग्स। आप उस चीज़ को एन्जॉय करें जो आपके नसीब में है, जो आपको मिला है उसको एन्जॉय करें। उसको अपनी प्रायोरिटी पे रखें, अपनी एन्जॉयमेंट, अपनी मेंटल हेल्थ को। और इस चीज़ में अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो आपकी लाइफ़ टाइम जो है वो इसी में गुज़र जाएगा। यू आर नॉट गोइंग टू टेक अ ब्रेक एनीवेयर, एनी टाइम, क्योंकि आप उस रेस में खड़े हो चुके हैं जिसकी कोई ब्रेक नहीं है। तो आपको सिर्फ़ अपनी सेल्फ वर्थ का ख़्याल करते हुए इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है कि लॉन्ग आवर्स अगर आपने कर भी लिए,
ठीक है, समटाइम्स यू नीड दैट, यू डू दीज थिंग्स, लेकिन क्या आपने उसके बाद अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर गौर किया है कि इतना ज़्यादा काम करने के बाद या इतना स्ट्रेस आउट होने के बाद आपके पास क्या बचा? जिस चीज़ के लिए आपने काम किया, क्या आपने उसको एन्जॉय किया? नहीं, आप उसको एन्जॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सेहत ही इजाज़त नहीं देती, आपका बर्नआउट ही आपको इजाज़त नहीं देता कि आप उस चीज़ को एन्जॉय करें। तो आप सिर्फ़ उतना काम करें और उतनी चीज़ों को अपने ऊपर बर्डन को लें जिसको आप बर्दाश्त कर सकें, होल्ड कर सकें। तो ये जो रेस है काम को डबल करने की या एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगाने की या ये सारी, आई अंडरस्टैंड लोगों को ये बात समटाइम समझ में नहीं आती। वो समझते हैं कि हमें बिल्स देने हैं, हमें चीज़ें करनी हैं, तो आपको कैसे पता होगा कि हम किस सिनेरियो से गुजरे, विच इज़ राइट, आई अंडरस्टैंड बहुत से लोग इस सिनेरियो से गुजर रहे होते हैं। सो रिसेंटली मुझे एक ओकेजन पे जाने का इत्तेफाक हुआ और विच इज़ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वहाँ मौलाना साहब से बात हुई, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान को सुनने का मौका मिला। तो जब उनकी मैंने ये बात सुनी कि ये तुम्हारे माथे पे तुम्हारा रिस्क जो है वो लिखा जा चुका है, तो फिर मुझे उनकी बात से बड़ा पीसफुल मैसेज मिला कि बिल्कुल जो चीज़ आपके नसीब में है आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं और वो आपको मिलेगी। जो आपने कोशिश की उसका सिला भी मिलेगा और एक वो है जो आपके लिए लिखा जा चुका है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो फिर भाग-दौड़ किस लिए? फिर इतनी स्ट्रगल किस लिए? फिर अपने आप को इतना बर्न आउट आप क्यों कर रहे हैं? आप रिलैक्स होके बैठें, आप अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, तो क्या आप अपनी फैमिली के साथ उस काम को एन्जॉय करते हैं? क्या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? फैसिलिटीज़ तो आप दे रहे हैं, तो आप कहाँ पे हैं? या आपके पास आपके बच्चे फॉरएवर बैठे रहेंगे? आपको सिर्फ़ ये सोचना है कि जो कुछ आज आपके पास है, आप उसको आज एन्जॉय करें अपने बच्चों के साथ, बेशक लिमिटेड हो, पर आप उसको एन्जॉय करें। आप जितना अपने पैर फैलाते जाएँगे, आपकी ज़िंदगी उतनी मुश्किल बनती जाएगी। हम में से हर कोई इस प्रॉब्लम का शिकार है। हम सब लोग इस सिचुएशन में हैं कि हम बेहतर से बेहतर होने के चक्कर में जो कुछ हमारे पास है, हम उसको एन्जॉय नहीं कर सकते। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि हम वर्क लोड में हैं, वर्क प्रेशर में हैं और सोसाइटी के प्रेशर में हैं। तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। एज़ आई सेड कि आफ्टर लिसनिंग टू मौलाना तारिक जमील, आई वाज़ सो impressed and I was thinking about it कि yes, he's right, he's saying right thing that why we are doing this, why we are running after it। जो चीज़ हमारे लिए आनी ही आनी है तो हम इतने ब्लाइंडली क्यों हैं कि हम अपने आप को बर्न आउट कर रहे हैं। और आई फील रियली सॉरी फॉर दोज पीपल, स्पेशली हमारे जो मेंस हैं, मर्द हजरात जो हैं, उनके लिए आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी कि द वे दे आर डूइंग देयर वर्क, वो उस चीज़ को कम लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। कम लोग अपनी फैमिली के साथ हर ओकेजन्स को एंजॉय करते हैं। सम टाइम खास इवेंट्स पे, बर्थडेज पे, ईद वगैरह पे, किसी वेडिंग, फैमिली वेडिंग के ऊपर आप अवेलेबल नहीं हो सकते ड्यू टू योर वर्क प्रेशर। तो अपने आप को इन चीज़ों पे बाउंड्रीज सेट करें कि हमें इस जगह होना ही होना है, नो मैटर व्हाट, जहाँ पे हमारा होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हमारी फैमिली है या जहाँ पे हमारे करीबी लोग हैं जिनके साथ हम इंजॉय करते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए फॉर सम टाइम आप एक प्रेशर में आएँगे, एक बर्डन में आएँगे, लेकिन जो जो चीज़ आपने एन्जॉय की है, तो आप ये सोचें कि क्या वो वक़्त कभी वापस आएगा? नहीं, वो वक़्त कभी वापस नहीं आता। वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आपके बच्चे भी बड़े हो जाएँगे, वो चले जाएँगे, अपने घरों को, अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाएँगे, तो क्या आपने अपना टाइम उनके साथ स्पेंड किया? आपने अपनी जो यंग एज है, उसको एन्जॉय किया, अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया? तो आप इन चीज़ों को जो है वो सोचें, इसके ऊपर काम करें अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा जो है आपको किसी किस्म की अगर कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अ, इस स्ट्रेस का शिकार हैं जो कि उनके लिए, उनको काम की तरफ से हैं और उनके लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके मैसेजेस देखे मैंने। आई डोंट नो इफ़ यू आर लिसनिंग और नॉट, इफ़ यू आर नॉट लाइव बिकॉज़ आई हैवंट मेंशन्ड दैट आई एम कमिंग लाइव फॉर दिस टॉक टुडे। तो मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट टुडे। So I just thought about those people that they were talking about the way they are dealing with their mental stress after work and work environment। तो उनसे उन लोगों से सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आपने अपने आप को उस प्रेशर से कैसे निकालना है। इसके लिए अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप उस पर सोच रहे हैं किस तरह से हेल्प ली जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एज यूके और माइंड जो है वो इस पे काफ़ी काम कर रहा है, जो कि
थैंक यू। तो वो जो हैं वो उस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। जो लोग उनको वॉलंटियर जॉइन करते हैं, काउंसलिंग के लिए हेल्प लेते हैं, वो उन पे कॉल करके बात कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं, जो स्ट्रेस से वो गुज़र रहे हैं। क्योंकि आई बिलीव ऐसे जब एक्सट्रीम लेवल पे आप चले जाते हैं तो आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप काइंडली उसको ज़रूर देखें और उसको ज़रूर जो है जॉइन करें, ताकि आप अपना मेंटल स्ट्रेस जो है उसको रिलीज़ कर सकें, आप किसी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार ना हों। और ये जो बातें, जो टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर की हैं, ये आपको बहुत काम आएँगी इन फ्यूचर। आप इसको ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर इनको जॉइन करें। और फिर आप इसके लिए जो है बात कर सकते हैं मेरे अगर आपको मेरी बातें जो हैं वो पसंद आई हैं, या आपको ये टॉपिक जो है उस पे अच्छा लगा, जैसे कि मुझे मैसेजेस आए तो मुझे ख़्याल आया कि ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर कोई और टॉपिक आपके माइंड में आता है, या आप उस समझते हैं कि उस पे हमें बात करना ज़रूरी है, ऑनलाइन आके उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, तो विल डेफ़िनिटली डू दैट। और अगर किसी प्रोफ़ेशनल को बुला के भी बात करनी होगी तो हम उस पे भी बात करेंगे। तो आप को जो सेल्फ वर्थ है उसके ऊपर ज़रूर काम करना है, अपने जो मेंटल स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करने के लिए, अपने वर्क सिनेरियो में रहते हुए अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, ख़ुद को इल्ज़ाम नहीं देना है, बल्कि अपने लिए बाशऊर होके कोशिश करनी है। द वे यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड योर सेल्फ वर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर ये चीज़ें जो हैं आपको बार-बार अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर करने के लिए रिमाइंडर्स चाहिए, तो वो रिमाइंडर्स भी आपको मिलते रहेंगे। मेरे पेज को आप जॉइन करें। आपको इसको लाइव जो प्रोग्राम हम करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो स्पेशली जो है मेंस को लेके जो मैसेजेस और क्वेश्चंस हैं, उस पे मैं यही कह सकती हूँ, आई ऑलवेज़ फील सॉरी फॉर देम द वे दे आर वर्किंग। लेकिन हमारी बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो बहुत हार्ड वर्क करती हैं, ना कि सिर्फ जॉब पे अपने घर से बाहर निकल के मेहनत करती हैं, बल्कि उनके पास घर का काम, घर के प्रॉब्लम्स, बच्चों की जो है वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनको वो डील कर रही होती हैं। और दीज़ आर द ब्रेव वुमेन्स अराउंड अस, हमें उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए। उनके लिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि उनके साथ जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने की ज़रूरत है। और उनके लिए आपको जो है हेल्प उनकी करनी चाहिए, उनको घर घर से जो है सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जो है मैं हमेशा कहती हूँ कि जो फैमिली एनवायरनमेंट है उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस बर्नआउट को शायद अंडरस्टैंड ना कर सकें। क्योंकि जो मर्दों से जुड़ा प्रॉब्लम है, जो मेंस का प्रॉब्लम है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो खामोश रहते हैं। अ, क्योंकि आपने कभी किसी मर्द को ये कहते हुए नहीं सुना होगा, एज़ आई फेल्ट और एज़ आई फील फ्रॉम मेंस, के वो ये कभी भी नहीं कहते कि आई एम मेंटली टायर्ड। मेंस नेवर से दीज़ थिंग्स, दे आर मेंटली टायर्ड। क्योंकि वो बस कहते हैं बस ठीक है, आई एम टायर्ड, या मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, या आई एम ओके बट आई एम टायर्ड, बट दे नेवर से दैट आई एम मेंटली टायर्ड। तो ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव अ बर्नआउट एट द वर्क प्लेस। मर्दों को भी काम की जगह जो है उस पे मेंटल स्ट्रेस होता है, बर्नआउट होता है, बस वो अपनी बातों में उसको हाईलाइट नहीं करते। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, इफ़ यू आर स्टेइंग साइलेंट इट्स रॉन्ग। लेकिन मर्द इसके ऊपर बात नहीं करते, वो नहीं कहते कि हम थके हैं। तो जो मर्दों पे काम का दबाव है वो क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि हमारे माशरे में मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो काम करने वाला हो, वो वीक ना हो, वो कंप्लेन ना करे, वो हर हाल में जो है ही नीड्स टू रन, ठीक है? तो वो अपनी शिकायत नहीं कर सकता। तो अगर वो इफ समबडी इज़ गोइंग टू से दैट ओके आई एम टायर्ड, आई एम नॉट फीलिंग गुड टू गो टू वर्क, और इफ आई आई कांट डू इट, तो उनके लिए पहला ख़्याल आपके माइंड में यही आएगा कि ये कमज़ोर हैं, या ये नाकाम हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनकी फ़ैमिली कैसे बड़ी होगी? तो कुछ लोग तो ख़ैर आई बिलीव कई जगहों पे मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ टाइम अगर इस कंट्री में हम लोगों को भाग-दौड़ करते हुए, काम करते हुए देखें, कितनी सर्दी में मैं देखती हूँ कि उबर डिलीवरीज़ आ रही होती हैं, चाहे वो बारिश है, चाहे बर्फ़ है, चाहे जैसा भी मौसम है, वो बेचारे जो है वो रन कर रहे होते हैं।
विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। ये उनकी हार्ड वर्क है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे वीमेंस के लिए मैं कहती हूँ कि उनको सपोर्ट उनके घर से मिलनी चाहिए, उनकी फैमिली से मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक काम नहीं देख रही, वो बल्कि अब 24/7 मेंटली भी स्ट्रेस्ड हैं, मेंटली भी काम कर रही हैं और फिजिकली भी काम कर रही हैं। तो जैसे विमेंस को सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली की तरफ से, इसी तरह जो मेंस इसके बारे में बात ही नहीं करते, जो अपने आप को ये हाईलाइट ही नहीं करते कि वो आर मेंटली टायर्ड, हम थके हुए हैं या हमें सपोर्ट चाहिए, तो उनको भी सपोर्ट चाहिए होती है। इफ़ दे आर स्टेइंग साइलेंट इट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स नॉट देयर नेचर। क्योंकि एज आई सेड कि अगर वो ऐसी बात करेंगे तो वो जो है वो बेचारे वीक कहलाए जाएंगे कि दे आर वीक, दे आर नॉट डूइंग इनफ फॉर देयर फैमिली और दे डोंट वांट टू वर्क। तो आदमी कैसे कह सकता है कि मैं थका हुआ हूँ या मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ? दैट्स नॉट हिज जॉब टू से दैट, which is not right. We understand it's not right, लेकिन it's our culture, part of our culture कि हम उसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि आदमी अपनी कंप्लेन मत करें। तो मर्दों के काम की वजह से जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो उनको स्ट्रेस में रखते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रेस में रखते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अगर 12 आवर्स की शिफ्ट करके आते हैं, आदमी स्पेशली, तो वो जो हैं वो गुस्से का शिकार होते हैं, क्योंकि अगर वुमेन्स भी आती हैं काम से, औरतें आती हैं और वो थकी हुई होती हैं, तो वो घर का काम भी आके कर लेती हैं, लेकिन वो अपनी टेक आउट करते हैं, अपने स्ट्रेस को टेक आउट करते हैं। दे टॉक अबाउट इट दैट आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टायर्ड, आई नीड रिलैक्सेशन, आई नीड टू गो आउट, आई नीड अ ब्रेक। वुमेन्स ऑलवेज टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड हम लोग इस चीज़ का इजहार भी कर लेती हैं। लेकिन आदमी कि ज़्यादा जो स्ट्रेस है या ज़्यादा जो चिड़चिड़ापन है, इरिटेटेबल बिहेवियर है, वो इस वजह से है, उनका उनका गुस्सा इस वजह से होता है क्योंकि वो इस बारे में बात नहीं करते, उसको डिस्कस नहीं करते और ये कहते नहीं हैं कि वो आर मेंटली टायर्ड। तो जो बेचैनी होती है वो आपको काम की भी होती है, बर्नआउट, आपको प्रेशर, आपको फैमिली की सपोर्ट का भी होता है। तो फिर कई जगह पे जब आप इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते आदमी लोग, तो वो फिर अपने जज़्बात को दबाते रहते हैं और उसके बाद वो खुद को जो है ना वो फेलियर फ़ील करने लग जाते हैं। तो उनको भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दे डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट दैट दे आर नॉट डूइंग इनफ। They are doing very good behavior, very good things they are doing at work and everything. So just need to explain, just need to acknowledge that I'm tired and I need a break. तो अब वो अपनी जो उदासी होती है या स्ट्रगल होती है उसको महसूस भी नहीं करते, बल्कि महसूस करवाना भी नहीं चाहते। वो सिर्फ इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं कि वो गुस्से में आ जाते हैं, खामोश हो जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि वो जब गुस्से में आते हैं और फिर वो अपना बर्नआउट करते हैं, तो उसके बाद जो है एनवायरनमेंट आपके घर का भी ख़राब होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो एक सिर्फ इस साइलेंस होने की वजह से आप कितनी चीज़ों को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, आप ये ज़रूर देखें। और प्लीज़ इस चीज़ को कमज़ोरी मत समझें और ये नहीं समझें कि आदमी अगर अपने काम की थकावट का या अपनी मेंटली स्ट्रेस का इजहार करता है तो वो कमज़ोर है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स टोटली रॉन्ग थिंकिंग। इफ़ यू अगर हम इतने इम्प्रूव कर चुके हैं अपने माशरे में, इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों में अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ अभी तक ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी कि हम आदमी और औरत का जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर लेबलाइज कर देंगे कि आदमी अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं कर सकते और औरतें जो हैं वो बस बनी ही इन्हीं चीज़ों के लिए हैं जो इन्वायरमेंट में वो रह रही हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्फ विद द टाइम। तो जो मेंस के लिए काम की जगह पे सबसे मुश्किल चीज़ें हैं उसको काउंसलिंग के उस एक्सपीरियंस से या काउंसलिंग वे से अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए सबसे हार्ड है कि वो हेल्प मांगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू एग्री विद मी इफ आई एम गोना से दैट कि कोई किसी आदमी को अगर ये लगे कि वो ये कह दे कि आई नीड हेल्प, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर देम। दे डोंट फील गुड टू से दैट, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट कि दे नीड हेल्प। तो वो अपनी वीकनेस को बताना नहीं चाहते कि हमें हेल्प चाहिए। उनको लगता है कि अगर हम अपनी हेल्प के बारे में बात करेंगे तो हम कुछ गलत इज़हार कर रहे हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करना जो है, परेशानी को छुपाना जो है, उस पे गुनाह महसूस करते हैं। तो अपने मेंटल स्ट्रेस जो है उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इनको सिखाया गया है, हमारे माशरे के मर्दों को ये बात सिखाई जाती है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, you don't need to say that you're tired, you don't need to highlight your stress. So I am telling you that कि अपने फीलिंग्स को जो है अंडर प्रेशर रखना, हाईलाइट ना करना, it's not a powerful thing. You are damaging yourself from inside. आप अपनी
इंटरनल हेल्थ जो है उसको बहुत बड़ा जो है वो नुकसान दे रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकल आना चाहिए। माशरा बदल चुका है, सोच बदल चुकी है। तो जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, या काउंसलिंग में आप जाएँगे या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, तो आपको ये बात सुनने को ज़रूर मिलेगी कि जो जज़्बात या फीलिंग्स आप अपने हाइड कर रहे हैं, कि आप आदमी हैं और आदमी अपनी प्रॉब्लम्स जो है उसको हाइलाइट नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि वो ये टायर्ड, तो दे आर डूइंग रॉन्ग, दे आर नॉट डीलिंग गुड विद देयर सेल्फ। तो वो अपना नुकसान जो है वो कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको इस जो है चीज़ से निकलने की ज़रूरत है कि अगर आप हेल्प माँग रहे हैं तो आप वीक हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आप एक्नॉलेज करते हैं अपनी सेल्फ वर्थ को। इसका मतलब है आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और आप उस पे काम करना चाहते हैं। ये पावरफुल लोगों की निशानी है जो अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखते हैं। वो सिर्फ़ अपनी ही मेंटल हेल्थ का ख़्याल नहीं रखते, बल्कि दे आर हेल्पिंग पीपल अराउंड देम। जो अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो वो चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो मर्द हैं, वो दोनों ही जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं कि वो अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हैं और अपना ख़्याल रख रहे हैं फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर किड्स। तो जो मेंस जो हैं अगर इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी कुछ जो है निशानी जो है एक, वो ये है हाइलाइट जो मैं करना चाहूँगी कि अगर आप किसी मर्द को जानते हैं, या आप आपके जो करीबी लोग हैं, उनके बारे में अगर हम जो है बात करें, तो आप आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, आप उनको देखेंगे कि जो स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा और वो बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, किसी एनवायरनमेंट में वो हैप्पी नहीं होंगे। वो उनके जज़्बात आपको नज़र नहीं आएँगे कहीं पे भी, तो वो अपने जज़्बात का इज़हार ही नहीं कर सकेंगे। उनको अपने जज़्बात का इज़हार करना, अपनी फीलिंग्स को टेक आउट करना जो है वो नहीं आएगा। क्योंकि उनके वो मेंटली तौर पे इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ही नहीं कर सकते। अपने जज़्बात, अपनी खुशी, अपना गम, किसी चीज़, किसी फीलिंग्स को वो हाइलाइट नहीं करते। तो या वो हर वक़्त जो है वो सोचते रहते हैं, हर वक़्त डिस्टर्ब रहते हैं और अपने आप को हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम जो हैं किसी काबिल नहीं हैं, या हमने जो किया वो हमेशा कम ही था, या वी डिड नॉट इनफ फॉर देयर फैमिली और फॉर देयर फ्रेंड्स और फॉर देयर सिबलिंग्स और व्हाटएवर दे हैव डन, इट्स नॉट इनफ। वो अपने आप को ब्लेम गेम में रखते हैं, हमेशा ब्लेम करते रहते हैं और फिर खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो काम में बिज़ी करके, काम के एनवायरनमेंट में वो ये शो कराना चाहते हैं कि मैं साइड पे ही रहूँ इस माहौल से, या अपने घर से या फैमिली से, क्योंकि आई एम नॉट कैपेबल फॉर एनीथिंग। क्योंकि मैं रहूँगा या मैं वहाँ रहूँगी तो मेरे गुस्से का इजहार करूँगा, तो इसलिए वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं अपनी फैमिली से, ज़्यादातर खामोश रहने की कोशिश करते हैं और उनको नींद कम आती है, टायर्ड ऑलवेज़ वो रहते हैं, बॉडी पेन्स में रहते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग ज़्यादा इस स्ट्रेस में रहते हैं कि अगर हमने हेल्प माँगी या हेल्प लेने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो जिस्मानी तौर पे बीमार हो जाते हैं। फिज़िकली दे विल बी वेरी वीक और दे जस्ट डोंट आस्क अबाउट हेल्प। उनको लगता है कि अगर उन्होंने मदद माँगी या हेल्प ली किसी से, उस हेल्प को सोच के ही जो है वो बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन साइन्स हैं, उन लोगों के कॉमन साइन्स हैं जो लोग आपके इर्द-गिर्द आपकी फैमिली में हैं, आपके दोस्त हैं या आपके फैमिली मेंबर हैं। अगर उनके अंदर ये साइन्स हैं तो दे आर मेंटली वेरी डिस्टर्ब्ड, दे नीड टू बी रिलैक्स्ड, दे नीड अ ब्रेक। आपको उनके साथ जो है वो उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो इसमें उनको कॉग्निटिव जो बिहेवियर थेरेपी है, सीबीटी, बहुत हेल्पफुल है उनको अगर वो इस चीज़ को कंसीडर करें, क्योंकि ये आपको आपकी फीलिंग्स के ऊपर काम करवाती है, आपकी सोच को बदलना शुरू करती है। तो जब आप सीबीटी टेक्निक्स के ऊपर जाते हैं या उस पे अमल करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ये टेक्निक्स आपको बताती हैं कि आप बहुत मज़बूत हैं, आपको कमज़ोर नहीं पड़ना, आप मतलब आपके लोग जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो लोग आपके अपने हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए भी आप अपना जो है सेहत का वो ख़्याल रख रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक्स हैं अगर आप इनको सोचें और इन ख़यालात जो हैं उनको चेंज करना सोचें, चेंज करने की कोशिश करें। देखें, हेल्प माँगना ये कहना कि मदद माँगना जो है वो कमज़ोरी है, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि मदद लेना, हेल्प लेना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने लिए हेल्प लूँ। फॉर माई फैमिली, फॉर माई किड्स, फॉर माई सिबलिंग्स, फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई सेल्फ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये 2 बातों को आपको
डिफरेंट तरीके से जो है ना वो समझना है कि मदद मांगना कमज़ोरी है, नहीं, मदद मांगना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ यू नीड हेल्प, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट दैट हेल्प फॉर योर फैमिली, फॉर योरसेल्फ। तो या ये कहना कि मैं ये सब अकेला सँभाल लूँगा, ठीक है? या मैं अकेला कर सकता हूँ। तो आपको ये कहने की ज़रूरत है कि मुझे ये सब कुछ अकेले सँभालने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन गेट हेल्प फॉर दैट। तो अपनी सोच जो है उसको बदलें। जब आप सोच को बदलते हैं तो दबाव जो है, आपको मेंटल स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। छोटी-छोटी सी टेक्नीक्स हैं, छोटी-छोटी सी बातें हैं जिनका सिर्फ़ सोचने का अंदाज़ जो है वो डिफरेंट होने की वज़ह से आप एक्सट्रीम लेवल का जो है वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं। तो जब आप ये चीज़ कहना शुरू करते हैं कि आई एम टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी because I am responsible for it, but if I need a help, I'm going to take a help for that. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक छोटी सी डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आप इस पे अगर काम करेंगे तो आपको बहुत जो है वो हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्सरसाइजेज जो हैं बहुत इजी हैं, जहां आप बर्न आउट हो रहे हैं तो बस 4 सेकंड्स के लिए गहरी सांस लें, अपनी सांस को 4 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर उसके बाद टेक आउट करें फॉर 6 सेकंड्स, अगेन डू दिस। तो ये आपके मेंटल स्ट्रेस को जो है स्ट्रेट अवे कम करेगी। फिर उसके बाद जो है हमारी जो ये माशरती जो है हमारे इर्द-गिर्द जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी अनफॉर्चुनेटली सबसे बुरी इफ़ेक्ट जो मर्दों के ऊपर है, उसको ये कहना कि तुम मर्द बनो, रो नहीं सकते, अगर तुम रोओगे तो तुम वीक हो। अ, लेकिन आप सोचें कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या वो आपको टाइम पे जिस वक़्त आप इमोशनली बहुत वीक हो चुके हैं, क्या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है? क्या जो लोग आपको ऐसे टारगेट करते हैं, जिनकी बातों की वज़ह से आप अपसेट होते हैं, तो क्या वो आपको इमोशनली जब आप ब्रेकआउट करते हैं, तो क्या आपको कोई सँभाल सकता है? कोई नहीं सँभाल सकता। अगर आप इमोशनली ब्रेकआउट करते हैं, तो सिर्फ़ आप ही अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हैं, नोबडी एल्स कैन डू दैट। तो फिर जब आप माशरती तौर पे इन बातों के दबाव में आते हैं, द पीपल टॉकिंग अबाउट यू, अराउंड यू, सो यू हैव टू इग्नोर दीज़ थिंग्स। You cannot give up yourself because of other people around you. They're not going to come to look after you. They are not going to take out the stress from you. They are just giving you a stress and you're taking it. तो आपको समझना है कि माइंड ओवर मैटर्स, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आप उनको वो करें हाईलाइट, ना कि आप उनको हाईलाइट करें जो कि चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं। ठीक है? तो आपको साइलेंट रह के अपने आप को ब्रेक नहीं करना, अपने आप को सँभालना है, अपने जज़्बात को सँभालना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, एंड इफ़ यू नीड हेल्प, यू नीड टू टेक दैट हेल्प। तो फॉर मेंस जो है उनको मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि आपकी वैल्यू, इट्स नॉट फॉर द मनी यू आर गेटिंग, इट्स नॉट फॉर द वर्क यू आर डूइंग। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को भी वैल्यू करना है, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली। सो आप जो लोग सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं या फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आपको अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्प करने की ज़रूरत है, और उन लोगों से हेल्प लेने की ज़रूरत है जिनके लिए आप काम करते हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके सिबलिंग्स, आपकी वाइफ और हस्बैंड, जो भी आपके करीबी लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अपने आप को अकेला जो है वो समझ के अकेला करके स्ट्रॉन्ग बनाना जो है वो सेंसिबल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है। अकेले सब कुछ टॉलरेट करना मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको इसके लिए मदद भी चाहिए, आपको इसको अंडरस्टैंड भी करना है कि आप किसकी सपोर्ट ले सकते हैं। और आई ऑलवेज़ गिव एडवाइस टू वुमेन्स अराउंड मेन कि अगर आप समझती हैं कि आपके हस्बैंड या आपके भाई, आपके डैड, व्हाटएवर हू इज़ इन योर हाउस, जो फुली वर्किंग हैं, काम करते हैं, तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल। जैसे कि वुमेन्स के लिए मैं कहती हूँ कि मर्दों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है इफ़ दे आर वर्किंग फुल टाइम, और इफ़ दे आर लुकिंग 24/7 हाउस, किड्स एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जिस तरह से औरतों को हेल्प की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपके जो मर्द हैं उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है। दे आर नॉट गोइंग टू से टू यू दैट वी आर मेंटली टायर्ड।
आई थिंक बहुत से जो आदमी हैं वो इस बात से एग्री करते होंगे कि वो इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करते या इस बात को बिल्कुल भी नहीं करना चाहते कि हम मेंटली जो हैं वो टायर्ड हैं या मेंटली हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो जो लोग हेल्प ले रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो इसका मतलब है कि अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं, दे रियली लव देयर फैमिली एंड दे ऑलवेज डू दोज थिंग्स व्हिच इज़ गुड फॉर देम फॉर देयर मेंटल हेल्थ बिकॉज़ ऑफ द फैमिली दे हैव। सो जो औरतें अपने मर्दों की साथ देख रही हैं कि वो काम कर रहे हैं और फुली हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू शुड बी थैंकफुल एंड यू शुड ऑलवेज मेक दैट एनवायरनमेंट बेटर फॉर देम। जो घर का एनवायरनमेंट है आप उनके लिए अच्छा बनाएं। कुछ लोगों को जो है वो अच्छे फूड का शौक होता है, कुछ लोगों को अच्छी जो है वो साफ़ सुथरे घर पसंद होते हैं, कुछ लोगों को ऑलवेज वेलकमिंग एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए काम करें, आप उनको सपोर्ट करें। और इसी तरह जो आदमी हैं वो अगर अपनी औरतों को जो काम भी करती हैं, जो घर भी देखती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं एज़ आई सेड कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करें, अपना सोचने का अंदाज़ जो है उसको बदलें। क्योंकि आपने अगर मुल्क बदले हैं, अपना पहनना-ओढ़ना बदला है, तो फिर आप अपने ख़यालात को बदलें। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बहुत लोग स्पेशली हमारे पाकिस्तानी जो हैं जो एशिया से लोग यहाँ आते हैं, वो एनवायरनमेंट बदलते हैं, वो अपनी कंट्री बदलते हैं बट वो अपनी थिंकिंग नहीं बदलते, जो अपनी सोच है उसको नहीं बदलते। सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी यू आर थिंकिंग पॉज़िटिव, यू आर वेरी पॉज़िटिव, इट्स ओके। बट अगर आप अपनी थिंकिंग जो है अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट आप चेंज नहीं करते जहाँ आप आ गए हैं, खाना-पीना बदला, पहनना-ओढ़ना बदला, तो अपनी सोच भी बदलें। क्योंकि सोच बदले बगैर जो है कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी और कोई चीज़ आपको सुकून नहीं दे सकती क्योंकि आपने अपनी सोच को नहीं बदला। और बहुत लोग हमारे जो हैं वो अपनी सोच को नहीं बदलते। दूसरे मुल्कों में आके भी नहीं बदलते और कोशिश भी नहीं करते बदलने की, बल्कि वो स्टिक अप हो जाते हैं उन बातों के साथ, उन चीज़ों के साथ जो कि वो जानते हैं कि आजकल के एनवायरनमेंट के साथ जो ठीक नहीं है, उसके ऊपर वो काम नहीं करते और काम करना भी नहीं चाहते। तो उनके लिए एक एडवाइस ही है कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना चाहते हैं, आप आज जितने लोग बहुत सी मेंटल हेल्थ का शिकार जो लोग हैं, उसमें आपको बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, उनके ऊपर आपको समझ आएगी कि वजह क्या है। क्योंकि हमने अपनी सोच नहीं बदली एनवायरनमेंट के साथ, मुल्क बदलने के साथ सोच नहीं बदली। सिर्फ़ पहनना-ओढ़ना ही बदला है, खाना-पीना भी वो बदला है लेकिन सोच नहीं बदली। तो अपनी सोच को बदलने के लिए ज़रूर काम करें और आपको लगे कि आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों को हेल्प आप कर सकते हैं या दूसरों को आप मोटिवेट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। और अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है या आप मोटिवेट हो रहे हैं तो प्लीज़ उन लोगों को सपोर्ट करें। आप अपने लिए भी, अपनी वेल-बीइंग के लिए भी और उनकी वेल-बीइंग के लिए भी आप ये काम करें कि आप दूसरों को सपोर्ट करना सीखें। लेग पुलिंग जो है वो छोड़ें, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। कहीं पे भी आप अपने लोगों के साथ काम करते हैं या आप अपने लोगों के साथ फैमिली एनवायरनमेंट में हैं, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हमारे यहाँ लेग पुलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रख रही है। ये जो एक रेस है इस माशरे में हमारे पास, ये ही हमें ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना देती है, शुगर का पेशेंट बना देती है। तो अ, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, इस एनवायरनमेंट से जो है ना वो निकलने की ज़रूरत है। आप इस पे काम करना शुरू करें, अपने हिस्से का काम जो आप कर सकते हैं आप करें और फिर जो है आप देखें कि आपको उसके रिज़ल्ट्स क्या मिलते हैं। आप उसके रिज़ल्ट्स को किस तरह से एन्जॉय करते हैं। सिर्फ़ आप अपने इर्द-गिर्द अपने घर का माहौल बदलें, उसके बाद आप अपने बहन-भाइयों का, अपनी फ़ैमिली का माहौल बदलें और उन लोगों को सपोर्ट करें जो कि काम से आते हैं या काम करते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उनको जो है वो हेल्प की ज़रूरत है। तो बिकॉज़ ऑफ दिस प्रेशर दे हैव अराउंड, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो जो काम लोग करते हैं वो उनकी जो है वो एक पहचान बन जाती है, एक शिनाख्त बन जाती है कि हम ये काम अगर छोड़ दिया तो अ, अगर कोई शख्स एक बड़ी कंपनी में काम करता है और अगर वो काम छूट जाता है, दे जस्ट सैक फ्रॉम द वर्क और एनीथिंग, तो वो फिर क्या सोचते हैं, वो फिर सोचते हैं कि अगर ये काम ना हुआ, ये जॉब ना हुई तो हम हमारे जो इर्द-गिर्द हमारा एनवायरनमेंट है, द पीपल अराउंड अस, दे गोना टॉक अबाउट इट। दे आर गोना थिंक अबाउट इट।
वैसे वो आपको मिलें या ना मिलें, लेकिन वो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप अपने वर्क से कैसे निकालेंगे और क्यों निकालेंगे। तो ये जो स्ट्रेस हम देते हैं अपने माशरे में रहते हुए लोगों को, हमें इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को जो प्रेशर दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। तो इसलिए जो लोगों में गुस्सा, एंग्ज़ायटी और ये एहसासात जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं बिकॉज़ ऑफ़ द कल्चर अराउंड देम। इस कल्चर को चेंज करने के लिए आप अपना एक जो है स्टेप लें और उसके बाद जो है बाकी स्टेप आप आहिस्ता-आहिस्ता आप लेते रहें और उसके साथ-साथ लोग भी आपको हेल्प करने के लिए निकलेंगे। आपका सबसे पहला स्टेप आपके घर से शुरू होगा, फिर आपकी फैमिली से, आपके सिबलिंग्स से, उसके बाद जो है आपके दोस्तों से, क्योंकि आप जो चीज़ें आप पॉज़िटिव करेंगे उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे ज़रूर पड़ता है। इसको याद रखें, सोच बदलेगी तो प्रेशर कम होगा। So, strong men always ask for support. It's not that it's a weakened thing that you're weak. You're not weak. You're very strong because you're asking for the help for your well-being. तो आप इस चीज़ को जो है ना वो इस फाइट से निकलें कि हम वीक हैं, हमें हेल्प नहीं चाहिए, अगर हमने हेल्प मांगी तो हम और वीक लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मर्द हैं वो भी हकदार हैं हमदर्दी के और यही सेंसिबल थिंग है अगर आप अपने आप से ये बात करें कि हम किस चीज़ पे जो है वो किस चीज़ को हम अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं और क्यों लेके आ रहे हैं। क्या ये वर्थ है? आपके घर के माहौल के लिए नहीं, ये बिल्कुल वर्थ नहीं है, इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। आप देखें कि आपके अपने एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों के साथ भी देखें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी देखें कि वो किस दबाव का शिकार हैं। जो सिम्पटम्स मैंने आपको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले वी डिस्कस अबाउट दोज़ थिंग्स कि हाइलाइट की थी कि जो मेंस जो हैं काम से आते हैं, जिन्होंने अभी मुझे जॉइन किया है, मैं उनके लिए बात दोबारा जो है वो रिपीट करूँगी कि जो लोग साइंस हैं उन लोगों के स्ट्रेस में रहने के, जो लोग खामोश रहते हैं, अपने जज़्बात का इज़हार नहीं करते और किसी खुशी के मौके पे उनकी कोई फीलिंग्स आपको नज़र नहीं आती और आपको गुस्सा आ रहा होता है कि व्हाई दे आर नॉट शेयरिंग थिंग्स द वे वी आर शेयरिंग और वी वांट देम टू टॉक अबाउट इट और वी वांट टू डिस्कस दीज़ थिंग्स बट दे आर नॉट डूइंग इट और उनको ये दबाव रहना, प्रेशर रहना कि इफ मैंने ना किया तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें जो हैं ये साइन्स हैं, उनका गुस्सा, उनकी एंग्ज़ायटी, उनका बिहेवियर जो है ये साइन्स हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। और जो है आपको देखना है कि जो आपके फादर हैं या आपके भाई हैं या आपके हस्बैंड हैं, वो अगर मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या वो वाक़ई दिल से मुस्कुरा रहे हैं? क्या वो वाक़ई ठीक हैं? तो आपको उनकी जो थकन है वो लोग हाइड करते हैं। मेंस अपनी टायर्डनेस जो है उसको हाइड करते हैं, उसको हाइलाइट नहीं करते। तो आपने उसको देखना है, आपको एज़ अ फैमिली उनको ये सपोर्ट देनी है कि उनसे पूछें कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। और क्योंकि उनके ज़हन में ये सोच रहती है कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जो है वो सेफ़ है, मेरा घर कैसे चल रहा है। तो अ, ये उनकी मोहब्बत है, उनका एहसास है, जो कि खामोशी में ही वो लोग अपना वो स्ट्रगल जो है उसको लेके चल रहे हैं। तो अ, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी जो है वो एक टायर्ड इंसान भी है। वो उसकी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के पीछे एक बहुत ही टायर्ड इंसान है, जो कि अपनी टायर्डनेस को हाइलाइट नहीं कर रहा। तो आप इस चीज़ को आप एज़ अ फैमिली जो है सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं ऐसी ख़वातीन को। मैं सिर्फ़ ये मेंस के लिए नहीं हाली कहूँगी, मेंस के लिए मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि मेंस आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज़ थिंग्स, दे ऑलवेज़ हाइड देयर स्ट्रेस, ऑलवेज़ हाइड, दे नेवर सेज़ दैट वी आर मेंटली tired. They are not going to highlight this problem. Women's can do that. We highlight our problems and we sometimes highlight a lot. तो फिर मेंस जो होते हैं वो उस चीज़ को हाइलाइट नहीं कर सकते या उसको उतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि वो वीक लगेंगे। तो इसलिए आपने देखना है कि आपके शौहर के अंदर ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है या वो जल्दी गुस्से में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, इसके बारे में बात नहीं करते तो हम समझ भी नहीं सकते। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम समझते हैं कि वो घर आते ही उनका मूड ऑफ हो जाता है, बाहर तो बिल्कुल ठीक रहते हैं या दोस्तों के साथ तो आप बिल्कुल ठीक थे, घर आते ही आपका मूड ऑफ हो गया। तो हम उस चीज़ की जो रियलिटी है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है? कि वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो जब वो ऐसे गुस्से में आ रहे हैं या थकन का इज़हार नहीं कर पा रहे या अपनी मेंटली स्ट्रेस का इज़हार नहीं कर पा रहे, तो आपको उसको किस तरह से टेक आउट करना है, किस तरह से उसको सँभालना है उस चीज़ को कि आपके घर का जो माहौल है वो ख़राब ना हो।
मदद मांगना, हेल्प मांगना, आई ऑलवेज से बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट वीकनेस, इट्स योर, दैट मीन्स यू आर वेरी स्ट्रांग इफ़ यू आर आस्किंग फॉर हेल्प। तो अकेले चलना जो है वो सेंसिबल नहीं होता। यू नीड टू टेक समबडी विद यू फॉर योर जर्नी। तो अपना ख्याल इसलिए भी आप रखें क्योंकि आपके पास आपकी फैमिली है और आप अपनी फैमिली के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपको गुस्सा तो आता है, तो वाइफ़्स के लिए जो है वो यही मैसेज है कि अगर आपके शौहर कम बोल रहे हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं या ख़ुद में ही बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, आपको लगता है कि वो बेपरवाह हैं, दे आर नॉट यू नो एंगेज इन द एनवायरनमेंट, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस हैं। तो आपको उनको नरमी से सुनना और समझना है। मर्दों के लिए इट्स वेरी हार्ड, बहुत बड़ी बात होती है फॉर आस्किंग हेल्प। वो नहीं हेल्प मांग सकते या नहीं हेल्प ले सकते, तो आपने जो है अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए आपको देखना है कि आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो जो विमेंस का रोल है, विमेन की जो मेंटल हेल्थ है, जो कि वर्किंग विमेंस हैं, वो जो फुल टाइम वर्किंग हैं, उनके लिए भी यही टेक्निक्स जो हैं, एज़ आई सेड, वो तो अपनी जज़्बात का या प्रॉब्लम का इज़हार कर लेती हैं, अपने स्ट्रेस को जो है उसको हाइलाइट कर लेती हैं, लेकिन सम टाइम उनके ऊपर उनको उनकी स्ट्रेस को जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लिया जाता है क्योंकि वो उस चीज़ को हाइलाइट भी कर देती हैं, तो जो है इसलिए उस उनकी इस बात को जो है वो बहुत नॉर्मल समझा जाता है कि दे आर ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज़ दे आर अंडर प्रेशर फॉर देयर वर्क, और द प्रेशर फ्रॉम वर्क दे आर टेकिंग, तो वो इस चीज़ को हाइलाइट कर रही हैं, तो इट्स ओके। या उनको ये कहने को, अगर आपको कोई ये कह देता है कि ओके यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम सब मैनेज कर लेती हो, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके ऊपर आप चलना शुरू कर देते हैं कि ओके आई नीड टू मैनेज दिस बिकॉज़ आई आई एम वेरी स्ट्रांग, और सब मुझे बहुत स्ट्रांग समझते हैं, तो लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैनेज करते-करते आप कितने थक जाते हैं। आपका घर के काम, आपकी ज़िम्मेदारियाँ, अ, या आपको लगता है कि अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ, या मैं मतलब विमेन्स जो मोस्टली सोचती हैं कि हम काम करती हैं, तो हम शायद बच्चों को या फैमिली को उतना टाइम फुल टाइम नहीं दे पाती, तो वो उस गिल्ट में भी जो है अपने आप को थका देती हैं, उस ज़िम्मेदारी को थका देती हैं अपने आप को, स्ट्रॉन्ग नज़र आने के लिए और ये समझने के लिए कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन उस पर्दे में जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में अपनी बेचारी हाइलाइट नहीं कर पाती अपनी स्ट्रेस को। तो वो जो चीज़ें हैं उनको अगर हम देखें, तो ये स्ट्रॉन्ग होने की अलामत नहीं है। हमेशा स्ट्रॉन्ग होना या हमेशा परफेक्ट रहना भी औरतों के लिए ज़रूरी नहीं है कि यू आर डूइंग एवरीथिंग सो यू कीप गोइंग लाइक दिस। तो सबसे बड़ा मसला काम करने वाली औरतों का ये होता है कि दे हैव टू काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, कि they are very professional because they are on the work scenario, they have to be very professional because they are working. So जब आप काम पे हैं आप बहुत प्रोफेशनल हैं, और जब आप घर पे हैं तो you are perfect. You need to be perfect because you're women, your mom, your wife, your sister, your daughter. So you should be very, very perfect in everything. So on the work, so those two characters are, the first one, you're professional at your workplace, and second one, the second character is that you are a perfect woman for your household. तो जो ये जो चीज़ें हैं, ये 2 तरह के जो करैक्टर हम लोग प्ले करती हैं विमेन्स, तो इसकी वज़ह से ये जो टायर्डनेस है ये हम खुद चूज़ करते हैं। हमें कहा जाता है कि आप खुद टायर्ड हैं बिकॉज़ आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको जो है वो चूज़ करना है कि आपने किस करैक्टर को किस तरीके से जो है वो मैनेज करना है। तो जो ये गिल्ट है वर्किंग वुमेन्स का, कि काम करते हैं, घर के लिए गिल्ट हो जाता है, बच्चों के लिए गिल्ट हो जाता है, अपने लिए टाइम ना निकालने का गिल्ट हो जाता है। तो ये जो इतने सारे गिल्ट होते हैं, ये वुमेन्स को जो है बिल्कुल तोड़ देते हैं। उनको खामोशी से साइलेंटली जो है वो ब्रेकअप कर रहे होते हैं। उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो इस गिल्ट से, जो वर्क रिलेटेड है या फैमिली रिलेटेड है, वो अपने आप को किस कदर जो है वो डैमेज कर रही हैं, नुकसान पहुँचा रही हैं। तो वो फिर अपनी सेल्फ केयर को जब इग्नोर कर देती हैं, तो वो फिर जब वो सेल्फ केयर नहीं करती तो वो सेल्फिश हैं, और अगर वो सेल्फ केयर करती हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि वो तभी स्ट्रॉन्ग हैं अगर वो सेल्फ केयर करती हैं। वो अपनी ज़रूरतों का ख़्याल रखती हैं, अपनी सेल्फ केयर करती हैं, क्योंकि
वो दोनों करेक्टर्स को 100% फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके चल रही हैं, क्योंकि वो बच्चों को, घर को, काम को, सबको इकट्ठा जो है, टू करेक्टर्स जो हैं उनको प्ले करते हुए अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रख रही हैं, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज एवरीथिंग। तो आप लोग इस चीज़ को जो है, ये सेल्फ केयर को जो है सेल्फिशनेस ना समझे। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा, अगर मैंने अपना ख्याल कर लिया या थोड़ी देर ब्रेक ले ली तो शायद आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, because I am very strong to dealing all with all this problems alone. So I'm very strong. You're not strong. You're doing wrong with yourself. You're not supporting yourself. You're not looking after yourself. You're not thinking about your self worth. तो अगर आपकी ये सोच है, जो हमें CBT थॉट्स जो हैं फॉर वर्किंग वुमेन्स, उनके लिए मैं अगर बात करूँ ये CBT के तरीके से, तो उनको भी दो चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। दो तरीके हैं बात के। पहला ख़्याल या पहली बात जो है वो ये है, मुझे हर चीज़ परफ़ेक्ट करनी है, ठीक है? आपको ये कहना चाहिए, बजाय ये कह सोचने के कि मुझे हर चीज़ परफ़ेक्ट करनी है, आपको ये कहना चाहिए कि मैं इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन एंड आई एम नॉट अ मशीन, ठीक है? It's not that you have to be perfect all the time. You don't need to be perfect all the time. You don't need to do everything perfect all the time. You're a human being. You're not a machine. You can't be perfect 100% all the time. So दोनों बातें हैं। मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी है, या मैं इंसान हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपने इस चीज़ में अपने आप को चूज़ करना है कि किस तरीके से आपने ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। या ये कहना कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, आई एम नॉट डूइंग इनफ। आपको ये कहना है कि आई एम डूइंग मोर देन इनफ। आई एम डूइंग मोर देन इनफ व्हाट आई कैन डू। तो ये बात आपने अपने आप को हाईलाइट करनी है। आपने अपने आप को बताना है कि आई एम डूइंग इनफ, नोबडी एल्स विल कम एंड टेल यू। तो जो ये सपोर्ट है, ये आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए खुद ही देनी है। जैसे आदमियों को मैं कह रही हूँ कि अगर वो सेल्फ वर्थ पहचानते हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि हेल्प लेना is not a bad thing. It's a thing that you're very strong and you need help, and you're taking that help because of your family and for supporting your family. तो इसी तरह औरतों को भी ये कहना चाहिए कि जो कुछ आप कर रही हैं अपने लिमिट्स में, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर फैमिली यू आर डूइंग। सो इन बातों को आपने अपनी सोच को बदलना है। तो जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होता है। तो वर्किंग वुमेन के लिए जो है ना, हर उस वर्किंग वुमेन के लिए जो खामोशी से जो है अपने आप को साइलेंटली जो चला रही हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप नाशुक्री नहीं हैं, सेल्फिश नहीं हैं, बस यू आर टायर्ड। और इफ़ यू आर टायर्ड, दैट मीन्स यू आर अ ह्यूमन। आप इंसान हैं, और इंसान की टायर्डनेस इंसान होने की जो है वो अलामत है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन बी टायर्ड। सो काम करने वाली औरतों की जो है वो हेल्प की हकदार हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट से, अपने लोगों से जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स। जिस तरह से आदमियों को हेल्प चाहिए, उसी तरह से औरतों को भी हेल्प चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगी कि जो आदमी जो हैं उनकी फैमिली जो है उनको सपोर्ट करती है उनसे काम से रिलेटेड, तो जो माएँ हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, या जो करियर के प्रेशर में औरतें हैं, उनके साथ भी, उनको भी इसी तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह जो है वो काम करने की ज़रूरत है उनके साथ, क्योंकि वो आपकी तरह वो भी इंसान हैं, वो भी थकती हैं, या आदमी भी इंसान है, वो भी थकते हैं। तो जो मदर्स हैं, अ, उनका जो दिन है वो तो मुझे लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि काम करने वाली माँओं का दिन तो कभी ख़त्म होता ही नहीं। कब ख़त्म होता है? अगर उनका ऑफ़िस वर्क या जॉब जो है वो ख़त्म होती है, लेकिन एज़ अ मदर उनका रोल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो जो लोग जो मदर्स हैं उनके बारे में अगर आप सोचें, तो उनका रोल जॉब के बाद जो है उनका घर, और उनका ये एहसास, ये गिल्ट जो है उनको ऑलवेज़ जो है इस चीज़ में रखता है कि वी आर नॉट डूइंग इनफ। तो आप खुद सोचें कि जो लोग, जिनका रोल ही कभी ख़त्म नहीं हुआ, जिनकी जॉब ही कभी ख़त्म नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह, if you're a mother, if you're dealing with that scenario where you have kids and family and everything, it's mashallah great thing. तो लेकिन उसके साथ साथ you're a human being, आपकी आप ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल।
मेंटली वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट किड्स, वी ऑलवेज थिंकिंग एक चीज़, एक साइड पे काम है, एक साइड पे हाउस एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, और एक साइड पे यू आर अ मदर, यू हैव किड्स। तो जो मदर्स हैं, वर्किंग मदर्स हैं, उनकी वो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकती। अगर वो ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकती तो उनको कितनी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या हमने कभी इसके बारे में बात की है? क्या किसी ने भी किसी फैमिली मेम्बर ने इसके बारे में बात की है? माशाल्लाह कुछ लोग तो हैं जो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते या बात नहीं करते। तो वो उनके लिए कितना मुश्किल है इस सिनेरियो में रहते हुए काम करना और अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना, और उनको कितनी सपोर्ट चाहिए होगी। वो कितना गिल्ट महसूस करती हैं, अपने बच्चों के गिल्ट, घर के गिल्ट, उनके लिए टाइम ना निकालने की गिल्ट। और ये जो टायर्डनेस है उनको किस कदर वीक कर देती है, वो हमें हमारी स्पेशली एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन मदर्स के अंदर नज़र आता है कि वो लोग कितनी जल्दी ओल्ड हो जाती हैं, कितनी जल्दी टायर्ड हो जाती हैं। और ये वो टायर्डनेस है जो कि उनको मिली है उस साइलेंट स्ट्रेस के साथ जो उन्होंने ली इतने साल अपने काम, बच्चे और फैमिली एनवायरनमेंट को देखते हुए, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो मैं बार-बार ये बात करूँगी कि जो आपने मुल्क बदला, लिबास बदले, खाना-पीना स्टाइल बदला, चीज़ें बदली, तो प्लीज़ अपनी सोच को बदलें। अपनी सोच को चेंज करें कि आप किसको कितनी हेल्प कर सकते हैं अपने आदमियों के हिसाब से, अपनी औरतों के हिसाब से, अपने वर्किंग मेन्स के साथ, उनकी वर्क स्ट्रेस के साथ, और वुमेन्स को कितनी हेल्प कर सकते हैं जो कि 24/7 जो है ऑन ड्यूटी हैं एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ और एज़ अ डॉटर और एज़ अ सिस्टर। और जो वर्कआउट है वर्किंग मदर्स का, वो उनको समटाइम रोने भी नहीं देता। ये अगर वो रो पड़ती हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी बिला वजह रो रही हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस है। जैसे कि मेंस की मैंने आपसे कहा कि उनकी एक स्ट्रेस है, वो चिड़चिड़ापन, खामोशी, वो गुस्सा, जो है मूड स्विंग्स जो हैं, वो उसी तरह औरतों के अंदर, माँओं के अंदर जो है, वो खुद को भूल जाने की वजह से, खामोश रहने की वजह से, या उस प्रॉब्लम को जो वो समझ नहीं रहे कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, उसकी वजह से वो बर्नआउट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन वी कैन टेल फ्रॉम आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, आपकी माएँ हैं, उनका गुस्सा अगर आप देखते हैं कि आपकी मम को विदाउट एनी रीज़न किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो वो बर्नआउट है। आप उसमें हेल्प करें उनको, उनसे बजाय उनसे नाराज़ होने के उनको सपोर्ट करें कि वो एक tired soul है that time, she needs a support, she needs a help, but she cannot say to you that she need a help. She's just telling you with her feelings, her behavior that I need a help. तो ये चीज़ें जो है ये आपको अंडरस्टैंड करनी है, जो उनके इर्द गिर्द ऐसे हस्बैंड्स के, ऐसे बापों के, ऐसे भाइयों के, या ऐसे लोगों के दरमियान आप रहते हैं जो ऐसे सिनेरियो से गुजर रहे हैं, तो वो आप हैं जो उसको पकड़ सकते हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो ये आपने देखना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं? कौन-सी हेल्प है जो हम ले सकते हैं? तो वर्किंग मदर्स जो हैं उनको भी सीबीटी टेक्निक से मैं फिर यही बात कहूँगी कि जैसे मेंस के लिए अपनी सोच को बदलना है, अपनी बात को अंडरस्टैंड करना है। तो सीबीटी जो है वो हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास ये सवाल आता है कि मुझे परफेक्ट मम बनना है, परफेक्ट माँ बनना है, तो आपको ये जवाब अपने आप को खुद ही देना चाहिए कि आई एम मोर देन इनफ। जो मैं कर रही हूँ वो काफ़ी है, मैं एक बहुत अच्छी माँ हूँ। You have to tell this to yourself. If nobody else is telling you, CBT techniques are telling us that you have to say this to yourself. कि ये सवाल आपने करना है अपने आप से कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, या आई एम अ वेरी गुड वाइफ और डॉटर, सो यू हैव टू से दैट आई एम डूइंग इनफ। यू डोंट नीड टू से दैट आई हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू से आई एम डूइंग इनफ। फिर अगर आपको ये ख्याल आता है कि आई एम अ फेलियर और आई एम नॉट डूइंग इनफ, तो फिर आपको ये जवाब अपने आप को देना है कि मैं अपने लिमिट्स में वट एवर आई कैन डू, आई एम डूइंग द बेस्ट, आई एम डूइंग द ग्रेट। यू जस्ट नीड टू से दिस थिंग टू योरसेल्फ। दोनों बातें बहुत आसान हैं, बस सोच जो है वो डिफरेंट है। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग अबाउट इट। तो परफेक्ट होना इनफ नहीं है। It's not important that you have to be perfect. The important thing that you are present. You are doing what you can. मोस्ट ऑफ टाइम लोग ये बात करते हैं कि हमने तो बहुत किया और फिर शायद बच्चे नहीं समझे, या रिलेटिव्स नहीं समझते, या फैमिलीज़ नहीं समझती। तो मैं हमेशा इस बात के जवाब में यही मेरा जवाब होता है कि सवाल में यही जवाब होता है कि
you don't have to regret about it that you haven't got that thing back from them, the thing you want, the appreciation. You don't had that. So just think कि you did your best, what you can do for them, what you have done for them. It's a best. You have done best. Your job is done from your side. If nobody is giving you appreciation or they don't understand, but you know from yourself कि आपने जो किया वो आपका वो 100% आपने दिया, अपने अपना 100% जो है वो एफर्ट जो है वो दिया। इफ वो आपने दिया, लेकिन आपको अगर उसका जवाब नहीं मिला, देन इट्स ओके, it's okay. uh, but you have done your best. You just need to appreciate yourself. You just need to say this to yourself. तो हर मम के लिए जो है वो ये पैगाम है, जो मैसेज है कि जो काइंडली खामोशी से जो है अपनी स्ट्रेस को लेके चल रही हैं कि यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट फेलियर, बस यू आर टायर्ड, यू नीड हेल्प, you want to take that help but you don't know how to take that help. So the people around you, जो हमारे फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको जो है इसके ऊपर सपोर्ट हमें जो है करने की ज़रूरत है। तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखें और उनको हेल्प करें जो कि खामोशी से साइलेंटली इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो आप उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, आपका क्या रोल है उनको हेल्प करने में। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद जो है वो मैनेज कर सकते हैं। Yes, yeah. Uh, it's about language. It's about you know माइंड जो है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बिहेवियर एंड माइंड किस तरह से आपस में जो है वो you're right, I'm talking about this as well in connection with all the CBT techniques related to the mental health and the stress and the silent burnout people are feeling. I'm talking about this thing, and you're right that हमारा दिमाग जो है वो सोचने के तरीके जो हैं वो डिफरेंट हैं, इज़ जस्ट द वे वी आर डीलिंग विद इट। तो इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो इन ईजी वे we are talking to yourself. I'm just telling that the CBD techniques related, that how you have to talk to yourself. You just need to change the question and answer in your brain, that what you're doing is more than enough, and you have to give this message to yourself, to your brain, that you're doing enough for your family. And you don't need to say that I am not capable of the things. You have to say I am capable of things, what I can do. For the things I'm doing, I am capable of those things. So it's a programming. um, ये ऐसी प्रोग्रामिंग है जो कि हम अपने आप से खुद ही क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। और जैसे हमारी फीलिंग्स जो हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, हमारे ब्रेन में जो हमें मैसेजेस मिलते हैं कि आई एम गिल्टी फीलिंग्स के, तो उनको किस तरीके से हमने बदलना है। इट्स फॉर दोज थिंग्स, यू राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सो ये जो टेक्निक्स हैं ये हमें डेली लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं कि अपनी आपको एंग्जाइटी से जो है निकालती। ओह दैट्स ग्रेट, इफ़ यू हैव देन वी कैन टॉक अबाउट इट, इट्स अ रियली गुड थिंग। एंड आई एम ऑलवेज सेइंग द पीपल who's working on the mental health or think about they have a chance, anything like that, to come up and talk about it, it's a very positive thing if you can do it. It's an amazing thing. So आपका अपना जो है एक्सपीरियंस होगा, if you have a good experience in that or you are dealing with it, so it's another kind of help you can do to people. We can talk live and we can discuss these things. So ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, जो है आपने सीखना जो है, जो डेली लाइफ रूटीन है, इसमें इट्स अ लर्निंग प्रोसेस that you are learning from your mistakes to avoid them. So you don't need to be scared from anxiety. Sometimes anxiety is not bad, it's just a signal. Sometimes हमें anxiety हो रही होती है किसी काम को लेके, तो हम जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं। तो sometimes it's a good thing that keep you motivated for your task you're doing. So always ये सोचना कि जो है एंग्जाइटी जो है वो गलत है, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, इफ़ यू नीड हेल्प, आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है
हर वक्त एंजाइटी का शिकार हैं, आपकी हार्ट बीट पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उस पर आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यू नीड टू टॉक अबाउट इट। तो आपको जो है अपनी सेल्फ वर्थ और अपने एक्नॉलेज, sorry, yeah, if you can't see, mm, I if you're add with me, I'll try to do that um, from my side if I can do this. If you're not add with me because you are not add, might be not add with me, तो अगर आप मेरे साथ, आप मुझे इनबॉक्स कर लें, तो हम अगर यूके फ्लावर्स है, आप अगर हमें जो है वो मुझे इनबॉक्स कर लें, तो फिर हम इस चीज़ को डिटेल से देख सकते हैं। अगर इसमें हम अभी I never invite anybody like that because I tried last time with my other friend but I couldn't make it. So if you can send me a inbox message, तो आई थिंक हम इस चीज़ के ऊपर I'll definitely need your support as well, because if you have any experience related that आपका काम है या आप कर रहे हैं, तो it's amazing thing. We can do it together. Yes, we can manage it the way we have to. Oh, that's great. That's great. So these kind of help, everybody needs you if you're doing the therapy. So we can talk about it. You have another, if you're working, you have lots of experience, I believe. तो फिर आप आएं and we can. Yes, it's an amazing thing. Yes, I'm doing the same. So it's a very good thing. We need more support. The people who are involved in that kind of work scenario or anything. तो आप अगर कर सकें इनबॉक्स, तो वी कैन टॉक अबाउट इट, हम लाइव आके इसके ऊपर में बात कर सकते हैं और हम हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी को, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट, आई डोंट बिलीव टू थिंक अबाउट ऑलवेज मनी साइड, इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ नीड, ये नहीं कह सकते कि इसके बगैर चल सकते हैं, लेकिन इट्स एन एक्स्ट्रा हेल्प इफ वी कैन गिव आवर कम्युनिटी समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप सीरियस हैं या अगर आपका माइंड इस तरफ आता है कि यू कैन हेल्प लाइक दिस टू पीपल, एंड इट्स एन अमेजिंग थिंग, यू कैन कम अप, आप मुझे इनबॉक्स कर देंगे अपनी डिटेल, तो मुझे पता चल जाएगा, तो हम लोग इसके ऊपर जो है वो लाइव बात कर सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं भी आना चाहती, तो हम जो है वो सिर्फ स्क्रीन मतलब वॉइस चैट पे भी बात कर सकते हैं हम, आप आई थिंक उस तरह भी जो है वो टॉक कर सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग थिंग इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, तो प्लीज़ इनबॉक्स मी, आई वांट टू टॉक अबाउट इट। तो और भी बहुत लोग जो हैं, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। So if you don't mind, you can share, you can message where you're doing this. So if anybody needs a help, लोग जो हैं उनको चाहिए काउंसलिंग, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना अगर मुझे कार्ड या अपनी कोई डिटेल्स जो हैं वो इनबॉक्स कर दें, तो इट्स एन अमेजिंग थिंग, आप बहुत लोगों को हेल्प करेंगे। थैंक यू। आपका नाम आ नहीं रहा, तो आई कांट कांट से अबाउट यू कि जो है आप मेल हैं या फीमेल, तो आई एम जस्ट कंफ्यूज इन दैट। तो आप मुझे अगर अपना वो इनबॉक्स कर दें, तो फिर इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप जो है वो इसको डेफिनेटली मुझे कर दें, तो इट्स अमेजिंग थिंग। तो हाँ जी, हम यही जो बात कर रहे थे इससे रिलेटेड। सो प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी है। देखें, आज बात करते हैं कितना फ़ायदा हो रहा है, एक और साइकोथेरेपिस्ट जो हैं आपको हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं। तो प्रोफेशनली जो हेल्प ये होती है, ये बहुत ऑनेस्टी का काम है। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है थेरेपी के लिए आपकी, कि आपको ट्रस्ट कितना है अपने थेरेपिस्ट पे। या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, really good, really good. Okay, yes, so you are a female, that's great, that's fine. Yeah, just inbox me, so we will definitely do that, talk about it, and might be I need some help, we can help each other that way, inshallah. Thank you so much. So important note सिर्फ यही है कि आप अगर हेल्प लेते हैं, तो उसमें प्लीज़ आप ये मत सोचें कि कोई चीज़ जो है वो आपकी लीक हो जाती है, वर्क एथिक्स के खिलाफ है, और ये आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। इट्स नॉट दैट यू हैव एन इशू, you have something very you know, something very important that you're working on.
तो हमने अपनी सोच को बदलना है। शॉर्ट वर्डिंग में मैं आपको यही कहूँगी, अपनी सोच को बदल के ही अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं आप उनको बदल सकते हैं। आप रियल लाइफ सिनेरियो में रहते हुए अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने वर्क प्लेस के जो स्ट्रेस हैं उनको कम कर सकते हैं। अपनी यस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से हूँ। No, no, I don't mind. It's a it's a straight easy question to answer. I'm from Pakistan. तो जो है आप जो है आप, if you don't mind, where are you from? तो फिर पता चल जाता है कि आप कहाँ से हैं। और यूके, या यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम यूके बट बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। फैमिली मेरी पाकिस्तान से है। आई मीन रीजन जो है वो पाकिस्तानी है, लेकिन आई एम ब्रिटिश सिटीजन। तो यूके में ही है लेकिन हैं हम पाकिस्तानी। कहीं भी चले जाएं हम पाकिस्तानी ही होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बात को ख़त्म करते हुए कि सपोर्ट योरसेल्फ, टेक दैट हेल्प यू नीड, and support your family around you that is working hard for you, the people around you, your mom, dad, or your husband or your wives, anybody in your household working hard for the family. Just support them. And if you're looking any symptoms, the symptoms we discussed today, अगर आपको लगता है कि any kind of health issues आ रहे हैं तो आप उन पे काम करें। कुछ लोग जो हैं वो थोड़े ज़िद्दी होते हैं और वो हेल्प लेना पसंद नहीं करते और हेल्प लेना नहीं चाहते, तो आप साइलेंटली भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू मेंशन देम दैट यू आर हेल्पिंग और यू थिंक दैट दे हैव सम इश्यूज। आप उनको साइलेंट हेल्प भी जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको उनको ये हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास कोई इशू है। सम टाइम लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते और स्पेशली फैमिली मेंबर्स जो आदमी हैं, मर्द हैं, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनको कहा जाए कि उनको कोई स्ट्रेस काइंड ऑफ इशू है, क्योंकि उनको ये एज़ आई सेड कि ये एक हमारा जो एनवायरनमेंट है, माशरा है हमारा, वो हमें इस तरह की इजाज़त नहीं देता। तो अगर आप इस चीज़ पे काम करें। थैंक यू, कैच यू लेटर सोनिया, थैंक यू। तो आप उस पे काम करें, आप साइलेंटली उस पे काम करें। आप उनको उनके रेस्ट का ख़्याल रखें, उनके खाने-पीने का ख़्याल रखें, उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो हाइलाइट करें कि वो एक्टिविटीज़ आप उनको किस तरह से करा सकते हैं और कितनी एक्टिविटीज़ की उनको ज़रूरत है उस पे अपनी लाइफ में उनको कैसी-कैसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो एक्टिविटीज़ को वैल्यू ही नहीं करते कि उनको कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे कोई गेमिंग, कोई वॉक या एक्सरसाइज। तो आप उनको डिफरेंट तरीके से जो है उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो जब आपको गुस्सा भी आएगा, आप इंसान हैं, आपका टेम्परामेंट भी लूज़ होगा, लेकिन आपको ये सोचना है कि यू आर हेल्पिंग समवन who's dealing with mental stress. You're helping someone and they need your support. They don't need any judgment on themselves, on their behavior or anything. आपको उनको judgmental नहीं बनना चाहिए। उनको सपोर्ट करने के लिए आपको उनके साथ अपना स्टाइल जो है वो डिफरेंट करना है, अपना अंदाज़ बदलना है। और इंशाल्लाह आई बिलीव हमारे बहुत से लोग जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत करनी है। सो वी आर हियर ऑलवेज, talk and heal with Chapara, always here to help. Anybody need the help, you can come to me, you can talk about it, and I'm always here to help with very honest and सपोर्टिव वे। आई एम गोइंग टू हेल्प यू। सो आप मुझसे बात करें और जहाँ मुझे लगेगा कि मेरी हेल्प जो है वो इनफ नहीं है, आई कैन आस्क फॉर द फर्दर हेल्प फॉर यू। आई कैन एडवाइज यू रिलेटेड योर मेंटल हेल्थ। Anything you want to discuss, you can message me, inbox me, and just feel safe. And I assure you that nothing is going to be open to anyone because it's against the work ethics. So stay safe and join me again, Talk and Heal with Chapara. Thank you so much for listening to me. And thank you for your support that, guys, you're joining me from long time. Thank you so much. If you think that I've done something good, kindly give me a message. As many people ask me for the work stress, same as you can ask me for anything else, any stress related thing we can discuss online. I will definitely do that. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आप सबके सुनने का, and inshallah see you soon again. खुदा हाफिज।